चलिए, स्वागत है आप सभी का। आज हम वापस मिले हैं आरटीपी में 25 का डिस्कशन करने। केस स्टडी 1 अपन ने डिस्कस कर ली, केस स्टडी 2 अपन अभी डिस्कस करेंगे। ठीक है, आ जाओ फटाफट से रिक्वायर्ड पार्ट पढ़ते हैं। एमसीक्यूज। इस सफायर लिमिटेड रिलेटेड पार्टी ऑफ डायमंड लिमिटेड एज पर इंड एस 24। एफआर का क्वेश्चन है। At what amount should Diamond Limited disclose the non-monetary benefit that its company-owned car provided to the key managerial personnel in its related party disclosures? FR का क्वेश्चन है कि भाई आपने किसी को नॉन मॉनेटरी बेनिफिट दिया है तो आप उसको फाइनेंशियल्स में रिकॉर्ड कैसे करोगे? Diamond Limited needs to determine the value of supply of diamond studded jewelry to compute GST on its sale to Zircon Limited for the financial year ending 31st March 25 based on the given data. GST का वैल्यू ऑफ सप्लाई का क्वेश्चन, ठीक है, फालतू। The company is expected to incur certain costs throughout its life cycle, which is the correct statement. SCMP का life cycle costing का question है। Which of the following is most likely to be true about Diamond Limited's management structure and strategy? SCMP का question है, theory type का, देखते हैं। Descriptive. Prepare the disclosure of related party transactions in compliance with the requirements of Ind AS 24। पूरा disclosure बनाने का बोला है, ठीक है, तो पॉसिबली 8 मार्क का क्वेश्चन हो सकता है। Provide a brief summary of audit procedures to mitigate the risk of unidentified or undisclosed related parties। Audit का क्वेश्चन है, related party का। Do transactions with Jade Limited require the approval of audit committee? Analyze। ये लॉ का क्वेश्चन लग रहा है। Would Diamond Limited benefit if Italy branch purchases from India branch? Comment। ये SCMP का डिविजनल ट्रांसफर प्राइसिंग का क्वेश्चन है, ठीक है। थोड़ा रिक्वायर्ड पार्ट पढ़ के समझ में आ रहा है कि इंस्टीट्यूट ने थोड़ी सी कॉर्नरिंग यहाँ पे ऐसे की है कि एफआर में वो लोग रिलेटेड पार्टी ज़्यादा पूछते नहीं है, बिकॉज डिस्क्लोजर बेस्ड छोटा सा स्टैंडर्ड है और एफआर में बहुत कुछ है पूछने को, तो उन लोगों ने यहाँ पे पूरी केस स्टडी बना दी। किसकी? इंड एस 24 की। तो आप समझ रहे हो कि इंस्टीट्यूट आईबीएस में कॉर्नरिंग भी कर सकता है। तो आपको ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए आपके पांचों कोर पेपर्स में, एफआर, एएफएम, ऑडिट, डीटी, आईडीटी, कि आपको कुछ पता ही नहीं है। देखो, आपने ये स्टैंडर्ड पढ़ा नहीं है तो आप एग्जाम में बुक तो लेके जाने ही वाले हो, लेकिन रिलेटेड पार्टी का आर भी नहीं पता आपको कि ये स्टैंडर्ड है ही क्या, तो ऐसे नहीं चलेगा। आपको कवरेज अंडरस्टैंडिंग पर से पूरी करनी पड़ेगी। आप ऐसा नहीं किया कि करना ही नहीं, ठीक है। पढ़ते हैं। डायमंड लिमिटेड। Diamond Limited, a listed company, is a leading player in India's organized jewelry retail sector, known for its diversified business in the trade, manufacture, and sale of diamonds, precious stones, diamond-studded jewelry, as well as articles. The company offers a broad range of jewelry items with a particular focus on certified diamond jewelry. Their offerings cater to various market segments, including wedding jewelry, party wear, and daily wear, providing a comprehensive selection for customers across different occasions. This focus on certified diamonds is central to the company's value proposition, ensuring quality and trust on its customers. कंपनी का थोड़ा बहुत बैकग्राउंड दिए। बिजनेस स्ट्रक्चर एंड स्ट्रेटजी। Diamond Limited, as the holding company, oversee a diverse portfolio of subsidiaries, JVs, and associates, leveraging its presence across various regions to gain competitive edge। मतलब जो डायमंड लिमिटेड है, ऐसा बोल रहा है, उसकी वेरियस सब्सिडियरीज भी है, जेवीज भी है, एसोसिएट्स भी है, और वो अलग अलग रीजन में ऑपरेट करती है, जिससे हर एक रीजन में इनको प्रेजेंस मिले और कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिले। द कंपनी फॉलोज अ डिसेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट स्ट्रक्चर, डेलीगेटिंग डेली ऑपरेशनल एंड डिसीजन मेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू डेजिग्नेटेड पर्सोनल with its division or branches. This approach promotes autonomy and accountability while ensuring that each division's objectives align with the company's overarching strategic goals। मैं बता रहा हूँ क्या है। By operating as a responsibility center, the managers are held accountable for performance, result, and profitability of the respective divisions. This structure enables Diamond Limited to manage its diverse operations efficiently while staying aligned with the broader business vision। अगर आप STMP में डिविजनल ट्रांसफर प्राइसिंग वाला चैप्टर पढ़ोगे, डिविजनल ट्रांसफर प्राइसिंग, तो डिविजनल ट्रांसफर प्राइसिंग के कोर में जो कॉन्सेप्ट है वो मैंने आपको अभी पढ़ा। आपने ये कॉन्सेप्ट है क्या है? फॉर एग्जांपल, एक कंपनी है, ठीक है, जिसकी बहुत सारी ब्रांचेस, डिवीजन, सब्सिडियरी, एसोसिएट्स है, ठीक है। अभी होल्डिंग कंपनी है, तो आपको लगता है कि ये एक कंपनी के जो मैनेजर्स हैं वो इन सारे कंपनीज का ऑपरेशन परफॉर्मेंस एक साथ देख पाएंगे? नहीं देख पाएंगे, तो बहुत सारी कंपनीज है। तो एज अ डिसेंट्रलाइज मैनेजमेंट स्ट्रक्चर क्या होता है, हर एक कंपनी में सेट ऑफ मैनेजर्स बिठा देते हैं। अच्छा,
सब्सिडियरी की बात आई तो वहाँ का तो मैनेजमेंट अलग होता ही है। अब इसको एज अ डिवीजन मान लो, सेल्स डिवीजन, परचेज डिवीजन, मार्केटिंग डिवीजन, अकाउंट्स डिवीजन, फाइनेंस डिवीजन, ऐसा मान लो। तो ये सारे डिविजन्स का एक मैनेजर होता है, सारे डिविजन्स का एक मैनेजर होता है जो अपने डिवीजन के परफॉर्मेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और इस डिवीजन की अगर परफॉर्मेंस अच्छी हुई तो इस मैनेजर को बोनस मिलेगा वेरिएबल, नहीं हुई तो उसका बोनस कट जाएगा। तो इसके पास भी इंसेंटिव रहता है कि अच्छा काम करने का। सर सेल्स का तो बता दिया हम, सेल्स से जितना सेल्स होगा उसका उसका उतना उसको बोनस देंगे। अकाउंट्स एंड फाइनेंस में कैसे करेंगे? तो इसको बोलते हैं सर प्रॉफिट सेंटर, और इन दोनों को बोलते हैं कॉस्ट सेंटर, और इन दोनों को कलेक्टिवली केस स्टडी में बोला है रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर। मतलब इसका जो परफॉर्मेंस असेसमेंट होगा वो प्रॉफिट के बेस पे होगा, इसका कॉस्ट बेस पे होगा। मतलब जितनी कॉस्ट ज़्यादा की नहीं, जितनी कॉस्ट कम की, जितनी कॉस्ट सेविंग्स की, उसका बोनस दे देंगे उसको। इन दोनों के पास सर्टन सेट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर ये लोग पूरी करेंगे तो उनका उनको बोनस मिलेगा। मैं बोनस मिलेगा बहुत इजीली बोल रहा हूँ बिकॉज ये लैंग्वेज थोड़ी अपने लिए अंडरस्टैंडेबल है। मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि इनका परफॉर्मेंस असेसमेंट इन फैक्टर्स के ऊपर होगा, मैं उतना डेप्थ में नहीं जाना, उनको बोनस मिलेगा, ऐसा समझ लो। ताकि इन लोगों के जो मैनेजर्स हैं उनके पास भी इंसेंटिव रहे अच्छा परफॉर्म करने का, और ये कंपनी भी अच्छे से चलती रहे। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल, ये जो प्रॉफिट सेंटर है, ऐसे फॉर एग्जांपल दो प्रॉफिट सेंटर्स है, ए और बी, ठीक है, ए और बी। ए एक्स प्रोडक्ट बनाता है, बी वाई प्रोडक्ट बनाता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये वाई डिवीजन, सॉरी ये एक्स डिवीजन को वाई प्रोडक्ट की ज़रूरत पड़ी, मतलब ए डिवीजन को वाई प्रोडक्ट की ज़रूरत पड़ी, वापस से ए एक्स बनाता है, बी वाई बनाता है। अब ए डिवीजन को वाई प्रोडक्ट की ज़रूरत पड़ी, तो ये ए का मैनेजर बी के मैनेजर के पास जाएगा कि मुझे तेरा वाई प्रोडक्ट दे दे। अब सर्टनली जो वाई बी का मैनेजर है वो ऐसा ही बोलेगा ना कि एक काम कर, तू मेरे से ये प्रोडक्ट मार्केट प्राइस पे लेके जा, मार्केट प्राइस पे। क्यों मार्केट प्राइस से भी? क्योंकि मैं एक्सटर्नल सेल्स भी मार्केट प्राइस पे करता हूँ। मार्केट प्राइस फॉर एग्जांपल 100 रुपीज़ है। अब अगर ए डिवीजन वाई प्रोडक्ट को मार्केट प्राइस पे खरीदेगा तो सर्टनली इसका कॉस्ट बढ़ जाएगा, इसका कॉस्ट बढ़ जाएगा। तो ए वाला बोलेगा नहीं, मार्केट प्राइस पे नहीं, मार्केट प्राइस पे कम पे। क्यों भाई? तू अगर एक्सटर्नल सेल्स कर रहा है तो तेरा मार्केटिंग कॉस्ट बच रहा है। बोलेगा हाँ बच रहा है, तो एक काम कर, तू मुझे मार्केटिंग कॉस्ट का काट के दे, माइनस मार्केटिंग कॉस्ट, फॉर एग्जाम्पल 90 रुपीज़, ठीक है। तो ये दोनों नेगोशिएट कर रहे हैं कुछ ना कुछ। मैं आपको बहुत डेप्थ में नहीं लेके जा रहा हूँ। ए और बी के मैनेजर्स नेगोशिएट करेंगे एक प्राइस, एक प्राइस जिसपे वाई ट्रांसफर होगा ए को, वाई ट्रांसफर होगा ए को। और वो नेगोशिएशन एक ऐसा नेगोशिएशन होगा, ध्यान देना, वो नेगोशिएशन एक ऐसा नेगोशिएशन होगा जिससे ए का फायदा हो, बी का फायदा हो, और कंपनी का भी फायदा हो। किसका? ए का फायदा, बी का फायदा, कंपनी का फायदा, बाप का फायदा और दोनों बेटों का फायदा, ठीक है। अगर ये दोनों का फायदा हो रहा है, कंपनी का फायदा नहीं हो रहा, तो क्या वो डील वर्थ है? नहीं है। अगर एक डिवीजन का फायदा हो रहा है, एक का नहीं हो रहा, कंपनी का फायदा हो रहा है, क्या डील वर्थ है? हाँ, क्योंकि अल्टीमेटली कंपनी का फायदा देखेंगे। बात समझ में आई? और इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं गोल कॉन्ग्रुएंस, गोल कॉन्ग्रुएंस, कि सबके जो गोल्स है वो मीट हो रहे हैं, सबके गोल्स है वो मीट हो रहे हैं, इसको बोलते हैं गोल कॉन्ग्रुएंस। और ये जो पैराग्राफ पढ़ा उसके पूरे बैकग्राउंड आपको डिविजनल ट्रांसफर प्राइसिंग में मिलेगा कि भाई आप एक ऐसी ट्रांसफर प्राइस सेट करो जिससे गोल कॉन्ग्रुएंस हो। और डिविजनल ट्रांसफर प्राइसिंग में जो क्वेश्चन आता है वैसा एक क्वेश्चन आपको यहाँ पे पूछा गया है, जो लास्ट पार्ट है डिस्क्रिप्टिव का, देखेंगे। As part of strategic expansion and supply chain optimization, Diamond Limited has undertaken various acquisitions. A few years ago, the company acquired Zircon Limited, a company specialized in the retail segment, through forward integration strategy. अच्छा, फॉरवर्ड बैकवर्ड इंटीग्रेशन आपको पता होगा, फिर भी बता देता हूँ। ये मेरी सप्लाई चेन है, यहाँ से रॉ मटेरियल आता है, ये मैन्युफैक्चर होता है, और ये रिटेल, फॉर एग्जाम्पल। इतनी सी सिंपल अपनी सप्लाई चेन। अगर ये मैन्युफैक्चरर है, ये रिटेलर को अक्वायर करता है, मतलब
जो सप्लाई चेन है उसमें आगे जा रहा है तो उसको बोलते हैं फॉरवर्ड इंटीग्रेशन, और पीछे मैंने अपने रॉ मटेरियल सप्लायर को ही एक्वायर कर लिया तो वो बैकवर्ड इंटीग्रेशन। ठीक है, ये आपको आता ही होगा। दिस एक्विजिशन अलाउड डायमंड लिमिटेड टू लेवरेज जिरकॉन लिमिटेड स्पेशलाइज रिटेल एक्सपर्टीज। अच्छा, उसको रिटेल में बेचना आता है, उसके पास अच्छे सेल्समैन है, उसके पास अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, मैंने उसको खरीद लिया तो अब मैं सीधा रिटेल कस्टमर्स को सीधा रीच आउट कर पाऊंगा विदाउट विदाउट इंटरमीडिएट प्रॉफिट्स ऑफ whom retailer, strengthening the brand's presence in the final consumer market. By integrating Zircon's capabilities, Diamond Limited enhance its ability to effectively market and sell its jewelry products, ensuring a seamless flow from manufacturing to retail. ठीक है, ये भी ज़्यादा काम का नहीं है। ग्लोबल एक्सपेंशन एंड प्रोडक्ट अलाइनमेंट, अब यहाँ से ध्यान दें। Diamond Limited strengthened its global footprint in 2023 by acquiring Retail Gems, a renowned Italy-based company। मतलब Diamond Limited ने जो इंडिया की कंपनी है उसने रिटेल जेम्स एक इटली की कंपनी को खरीद ली। ठीक है, मतलब ऐसा मेलोनी की कंपनी को खरीद लिया। मोदी जी ने बोला कि भाई एक आधी कंपनी में हमारे में भी इन्वेस्ट कर दो, तो मोदी जी बोला ठीक है डार्लिंग कोई बात नहीं। ठीक है, the company is currently evaluating whether retail gems should procure gem indo, मतलब एक प्रोडक्ट है gem indo, एक प्रोडक्ट है gem indo, a diamond studded jewelry item manufactured by Diamond Limited's अहमदाबाद डिवीजन। मतलब ये जो होल्डिंग कंपनी है उसका एक अहमदाबाद में डिवीजन है, उसका एक अहमदाबाद में डिवीजन है। ठीक है, अहमदाबाद में डिवीजन, वो एक ऐसे सिमिलर प्रोडक्ट बनाता है। तो जो मेरी सब्सिडियरी कंपनी है वो ये सोच रही है कि क्या मैं अपनी होल्डिंग कंपनी के डिवीजन से ये प्रोडक्ट खरीद लूँ, ऐसा वो सोच रही है। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करते हैं हम लोग। अहमदाबाद डिवीजन हैज़ एन एनुअल प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ 1,20,000 यूनिट्स ऑफ जेम इंडो, while retail gems in its smaller manufacturing capacity can produce a similar item gem Milano up to 50,000 units annually। मतलब देखो अहमदाबाद के पास मैन्युफैक्चरिंग है जेम इंडो का, और इटली में जेम मिलानो ये मैन्युफैक्चर होता है, और ये दोनों प्रोडक्ट्स है ना वो सिमिलर है, सेम नहीं, सिमिलर सेम नहीं है, सिमिलर है। मतलब फॉर एग्जांपल ये हो गई, मैं फॉर एग्जांपल ये बॉटल बनाता हूँ, लेकिन ये बॉटल है ये स्टील की है, अब मुझे यहाँ पे प्लास्टिक की बॉटल थी तो बॉटल तो बनाता हूँ बट सेम नहीं है, सिमिलर प्रोडक्ट है। ठीक है, in the Italian market, the local purchase price of an item similar to Gem Milano is 1,600 euros, equivalent to 1,44,000 per unit. However, Diamond Limited is exploring the feasibility of transferring its item, that is product, suitably adapted to meet Italian cultural preferences from Ahmedabad division to retail gem। मतलब क्या बोलता है, एक काम कर, अहमदाबाद डिवीजन को बोल रहा है एक काम कर, तो ये जेम इंडो है ना इसको जेम मिलानो बना दे, मतलब इटालियन कंडीशन में सूटेबल हो ऐसा प्रोडक्ट बना के तू इटली ट्रांसफर कर दे। किसको बोल रहा है, इटली ट्रांसफर कर दे, किसको बोल रहा है, अहमदाबाद डिवीजन को। कौन, सब्सिडी अपना होल्डिंग कंपनी। ठीक है, द कॉस्ट टू द इटली डिवीजन फॉर सच अ ट्रांसफर वुड बी 1,700 euros, इक्विवेलेंट टू 1,53,000 रुपीज पर यूनिट। This price includes all associated costs such as delivery, duties and taxes, handling charges, etc. For external sales in India, Gem Indo is priced at 1,08,000 per unit। मतलब इसका जो एक्सटर्नल प्राइस है वो 1,08,000 है। ठीक है, when sold to retail gems in its suitably modified version, the transaction is carried out at an arm's length price of 1,400 per unit। A total of 50,000 units of Gem Milano are being transferred to retail gems। मतलब अहमदाबाद डिवीजन अब जेम मिलानो मैन्युफैक्चर करके इटली भेजेगा 50,000 यूनिट्स। रिप्रेजेंटिंग अ सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ अहमदाबाद डिवीजन एनुअल प्रोडक्शन कैपेसिटी। सही है भाई, मेरी एनुअल प्रोडक्शन कैपेसिटी कितनी है, यहाँ पे कितनी थी, 1,20,000, उसमें से 50,000 तो मैं अब इटली को ट्रांसफर कर दूंगा। द करंट सेल्स वॉल्यूम ऑफ अहमदाबाद डिवीजन इज 1,00,000 यूनिट्स। द पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट ऑफ जेम इंडो इज 80,000
for external sales. However, for the transfer to of Gem Indo to retail gems, मतलब मैं जब अपनी सिस्टर कंसर्न को ट्रांसफर करूंगा, मतलब अपनी सब्सिडियरी को ट्रांसफर करूंगा, अहमदाबाद डिवीजन अपनी सब्सिडियरी को अगर ट्रांसफर करेगा तो उसका वेरिएबल कॉस्ट आएगा 74। 80 से 74 का जो गैप है, 80 से 74 का जो गैप है वो एसेंशियली कौन सी कॉस्ट होती है? अगर मैं एक्सटर्नल मार्केट में कुछ बेच रहा हूँ तो मुझे बहुत सारी मार्केटिंग कॉस्ट इनकर करनी पड़ती है, पैकेजिंग कॉस्ट इनकर करनी पड़ती है। लेकिन अगर मैं अपनी सिस्टर कंसर्न को भेज रहा हूँ तो मुझे मार्केटिंग कॉस्ट इनकर नहीं करनी पड़ती, जिससे सेविंग होती है। सेविंग एसेंशियली मार्केटिंग कॉस्ट की होती है, पैकिंग कॉस्ट की होती है, ठीक है। तो ये सब सेविंग्स हो जाती है। बात समझ में आई? रिफ्लेक्टिंग पोटेंशियल एफिशिएंसीज और सेविंग्स फ्रॉम इंटरनल ट्रांसफर अरेंजमेंट, मतलब यही सेविंग्स। Additionally, an adoption cost of 24,000 is incurred to modify the item for Italian cultural preferences. जेम इंडो से जेम मिलानो मैंने जब बनाया, जेम इंडो से मैंने जब जेम मिलानो बनाया, मतलब ये मेरा जो अहमदाबाद डिवीजन बनाता था और ये जो इटली में चाहिए, ये मैंने बोला था सेम प्रोडक्ट नहीं है, सिमिलर है, सेम नहीं। तो सिमिलर से सेम बनाने के लिए मुझे 24,000 का एडिशनल कॉस्ट इनकर करना पड़ा, 24,000 का एडिशनल कॉस्ट इनकर करना पड़ा। फॉर एग्जाम्पल मैं कोई लैपटॉप लेता हूँ, ठीक है, वो लैपटॉप की डिज़ाइन इंडिया में थोड़ी सी अलग चाहिए, तो डिज़ाइन चेंज करने की एक एडिशनल कॉस्ट, ठीक है, सिंपल। द टैक्स रेट एप्लीकेबल फॉर बोथ एंटिटीज डिफर एंड सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस द प्रॉफिटेबिलिटी, ठीक है। अहमदाबाद डिवीजन को 30% टैक्स है और इटली डिवीजन को 40% टैक्स है। दीज टैक्स रेट्स could impact the financial outcomes of the both entities, ठीक है। ऑफ कोर्स मैं कैसे करूँगा, ध्यान दो। सेल्स अहमदाबाद डिवीजन, इटली डिवीजन और कंसोलिडेटेड, ऐसा आपको बताता हूँ। सेल्स अहमदाबाद डिवीजन, इटली डिवीजन और डायमंड लिमिटेड, ठीक है। अब अहमदाबाद डिवीजन यहाँ पे सेल्स करेगा तो उसका यहाँ पे परचेज होगा, सेल्स करेगा तो यहाँ परचेज होगा। यहाँ पे सेल्स पे उसको टैक्स भरना पड़ेगा, आउटफ्लो, और परचेज में टैक्स सेविंग्स होगी, इनफ्लो। और इससे नेट इम्पैक्ट आएगा डायमंड लिमिटेड की कंसोलिडेटेड टैक्स पोजीशन पे, कंसोलिडेटेड टैक्स पोजीशन। तो क्या बोल रहा है कि भाई टैक्स रेट डिफरेंट है, जिससे इंडिविजुअल एंटिटीज का जो टैक्स पोजीशन है उस पर इंपैक्ट आ रहा है, जिससे कंसोलिडेटेड टैक्स पोजीशन पे भी इंपैक्ट आएगा। These tax rate differences could impact the financial outcomes of both the entities, particularly with respect to profitability and tax liability. It is assumed that exchange rate will remain consistent. मतलब exchange rate का आप टेंशन मत लो, tax rate का आप टेंशन लो। Sustainability and life cycle costing. Aligned with the commitment to sustainability, Diamond Limited integrates life cycle costing into its product strategies. This methodology accounts for all costs throughout the item's life cycle, including investment, operation, maintenance, and disposal. For its flagship item, Aurora, the company employs a comprehensive life cycle costing approach, covering all costs incurred throughout the item's life cycle. These costs include 460 for material, 100 for research, 50 for distribution, 300 for development, 380 for labor, 500 for overhead, 30 for disposal, 500 for training, 170 maintenance, 85 warranty claims, 200 design and testing, 70 for environmental cleanup. This holistic approach underscores the company's commitment to sustainability, innovation, and operational excellence. लाइफ साइकिल कॉस्टिंग का एक 38 to 39 मिनट्स का कॉन्सेप्ट वीडियो मैंने अपनी चैनल पे डाला हुआ है, आई बटन पे क्लिक कर लेना, आपको मिल जाएगा, वो देख लेना। अपन सिर्फ यहाँ पे सॉल्व करेंगे, मैं लाइफ साइकिल कॉस्टिंग का कंसेप्ट आपको वापस नहीं कर रहा, एक बार करा चुका हूँ। Audit and financial oversight. Amit and Amod LLP, Chartered Accountants, have been appointed as the statutory auditors of Diamond Limited for FY 24-25. Amit and Amod LLP recognize that the related party transaction common in business operations pose potential risk of material misstatement or fraud in the financial statements. To address these risks, the auditor sent an email to MS Ratna Malik, the CFO of Diamond Limited, requesting a comprehensive list of related parties and companies' related party policy. ठीक है, मेल नहीं पढ़ना है अपन को। उन लोगों ने दो चीज़ें शेयर की, एक ग्रुप स्ट्रक्चर शेयर किया जिसमें सारी रिलेटेड पार्टीज है, और दूसरा रिलेटेड पार्टी की पॉलिसी शेयर की, वो देख लेते हैं, ठीक है, मेल वेल पढ़ने की ज़रूरत नहीं। ग्रुप चार्ट,
ध्यान देना। डायमंड लिमिटेड होल्डिंग कंपनी, कोरल जेवी ऑफ डायमंड लिमिटेड, एमराल्ड एसोसिएट ऑफ डायमंड लिमिटेड, एमथेस्ट, टोपास, जिरकॉन, रिटेल जेम्स, 4 सब्सिडियरीज। एक, एक, दो, तीन, चार। मतलब मेरी जो होल्डिंग कंपनी है डायमंड लिमिटेड की 4 सब्सिडियरीज है, एक एसोसिएट है, एक जेवी है। जो जेवी है उसकी एक सब्सिडियरी है, जेवी की एक सब्सिडियरी है सफायर लिमिटेड। जो एसोसिएट है उसकी एक सब्सिडियरी है रूबी, और एक एसोसिएट है जेड। मतलब जेड है वो एसोसिएट का एसोसिएट है, रूबी वो सब्सिडियरी का एसोसिएट है, सफायर वो सब्सिडियरी ऑफ जेवी है। बाकी ये सब्सिडियरी है चार, स्टेप सब्सिडियरी कुछ नहीं है, ठीक है। और रिलेटेड पार्टी की पॉलिसी दी है, वो पढ़ लेते हैं फटाफट से। सबसे पहला चीज़ है आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिलेटेड पार्टी, दूसरा अप्रूवल ऑफ ट्रांजैक्शंस, ठीक है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिलेटेड पार्टी, कौन कौन सी एंटिटीज को हम रिलेटेड पार्टी मानेंगे और उनसे कौन कौन से ट्रांजैक्शन होंगे, उनका अप्रूवल कैसे होगा, ये पॉलिसी है किसकी कंपनी की, डायमंड लिमिटेड की। क्या बोल रहे हैं, सबसे पहला आइडेंटिफिकेशन, एवरी प्रमोटर डायरेक्टर केएमपी ऑफ द कंपनी एंड इट्स सब्सिडियरी एसोसिएट जेवी शैल एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट, सबसे पहले पीरियोडिकली एवरी ईयर वेन एवर देर इज एनी चेंज, मतलब प्रमोटर डायरेक्टर केएमपी जब कंपनी में आया तब, दूसरा एवरी ईयर पीरियोडिकली, और तीसरा जब कहीं पे भी चेंज है, किस में ये प्रमोटर डायरेक्टर और केएमपी जिन जिन कंपनीज में इंटरेस्टेड है, जिन जिन कंपनी में इंटरेस्टेड है, उन कंपनीज की डिटेल किसको देनी पड़ेगी, डायमंड लिमिटेड को। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि उसमें से कोई पार्टी डायमंड लिमिटेड की रिलेटेड पार्टी बन जाए, ठीक है। तो अभी फॉर एग्जांपल अपॉइंटमेंट के बाद मेरा डायरेक्टर का किसी भी कंपनी में इंटरेस्ट चेंज हुआ, तो जब चेंज हुआ तब कंपनी को बताना है, हर साल कंपनी को बताना है, और अपॉइंटमेंट के टाइम तो बताना ही, ठीक है। क्या बताना है, प्रोवाइड requisite information about his or her relatives and all firms, companies, body corporate and other association of individuals in which promoter director KMP is interested। मैंने नहीं बोला कंट्रोल सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस, नहीं बोला, इंटरेस्ट भी बताना है, ठीक है। वेदर डायरेक्टली इनडायरेक्टली ब्ला ब्ला ब्ला। इतना समझ में आ गया? इससे क्या होगा, प्रमोटर डायरेक्टर केएमपी, प्रमोटर डायरेक्टर केएमपी जिन जिन कंपनीज में इंटरेस्टेड है उसका डिटेल्स अगर डायमंड लिमिटेड के पास आ गया तो उसमें से आइडेंटिफाई कर पाएगा कि ये मेरी रिलेटेड पार्टी है ये नहीं है। बात समझ में आई? और दूसरा, अब रिलेटेड पार्टीज आइडेंटिफाई हो गई तो उनके साथ ट्रांजैक्शन के लिए क्या अप्रूवल मैट्रिक्स है, all transactions which are identified as related party transactions and subsequent modifications thereof shall be approved by the audit committee in a manner specified under applicable laws and regulations। मतलब ऑडिट कमेटी से आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा। The audit committee shall consider all relevant factors while deliberating the related party transactions for its approval। ऑडिट कमेटी के पास जब अप्रूवल के लिए जाएगा तो वो बहुत सारे फैक्टर्स को असेस करेंगे। Any member of the audit committee who has potential interest in the related party transaction shall recuse himself and abstain from discussion and voting। मतलब फॉर एग्जांपल रिलेटेड पार्टी ऑडिट कमेटी में 3 लोग हैं, 3 में से एक का इंटरेस्ट है उस एंटिटी में जिसके साथ ये रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन का अप्रूवल गया है, तो वो मेंबर कुछ बोलेगा नहीं और वोटिंग भी नहीं करेगा। ये कंपनी लॉ के प्रोविजन एज इट इज छाप दी, ठीक है, ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं। बात समझ में आई? तो ऑडिटर ने कंपनी से 2 चीज़ें मांगी, आपका रिलेटेड पार्टी का हमको, ऑडिटर ने क्लाइंट से एक चीज़ मांगी कि आप हमको रिलेटेड पार्टी के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दो। तो उसने क्या दिया, ग्रुप स्ट्रक्चर दिया, रिलेटेड पार्टी पॉलिसी दी, ग्रुप स्ट्रक्चर दिया, रिलेटेड पार्टी पॉलिसी दी। उसके अगले दिन, द फॉलोइंग डे, द ऑडिटर्स मेट विथ मिस्टर मानिक पॉल एंड रिक्वेस्टेड अ कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट ऑफ रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस। आपने मुझे ग्रुप चार्ट दे दिया, आपने मुझे पॉलिसी दे दी, अब मुझे ट्रांजैक्शंस दे दो कि कौन कौन से ट्रांजैक्शंस में आपने एंटर किया है अपनी रिलेटेड पार्टीज से। Mr. Paul promptly provided the requested details, which are included in the attached annexure. Subsequently, the auditors designed and executed procedures to gather sufficient and appropriate audit evidence to verify that the related party relationships and transactions were properly identified, accounted, and disclosed in the entity's financial statements। मतलब मेरे पास ये आया तीनों डिटेल्स, तो मैंने ऑडिट प्रोसीजर्स की, उसके बाद मैंने क्या किया, अपॉन कंप्लीटिंग दीज प्रोसीजर्स द ऑडिटर सेंट एन ईमेल टू मिस्टर मानिक पॉल एंड रत्ना। उन्होंने क्या किया, ये तीनों चीज़ें ली, अपनी प्रोसीजर्स की, और फिर एक ऑब्जर्वेशन का मेल भेजा, किसको, कंपनी को।
क्या ऑब्जर्वेशन थे उनकी? 4 ऑब्जर्वेशन। सबसे पहली, ये सब फालतू चीज़ें मैं नहीं पढ़ रहा हूँ। सबसे पहली ऑब्जर्वेशन, सफायर लिमिटेड इज नॉट आइडेंटिफाइड एज रिलेटेड पार्टी। मतलब उन लोगों ने जो ट्रांजैक्शन दिए उसमें सफायर लिमिटेड के ट्रांजैक्शंस को रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन माना ही नहीं, तो उन्होंने बोला कि अब मानो। ठीक है। दूसरा, ऑडिट कमिटी अप्रूवल नॉट ऑब्टेन्ड। ड्यूरिंग द ईयर द कंपनी परचेज टोन आइटम्स फॉर 595 lakhs from Jade Limited. These related party transactions should have been entered into with proper approval of audit committee as provided under blah blah blah. The approval would be required despite that the Jade Limited is not a material entity for Emerald Limited. ध्यान दो, डायमंड लिमिटेड की एसोसिएट है एमराल्ड लिमिटेड, उसकी एसोसिएट है जेड लिमिटेड। इसके साथ डायमंड लिमिटेड ने कोई ट्रांजैक्शन किया और उसको उन लोगों ने बिना अप्रूवल के, किसकी, रिलेटेड ऑडिट कमेटी की अप्रूवल के बिना ट्रांजैक्शन किया। तो ऑडिटर की ऑब्जर्वेशन है, वो किसको बता रहा है? क्लाइंट को। ये थर्ड ऑब्जर्वेशन है। नॉन मॉनिटरी बेनिफिट टू केएमपी। रत्ना मलिक केएमपी यूजेस कंपनी ओन्ड कार एंड शुड बी डिस्क्लोज्ड as the related party transaction in the financial statements. Relevant details are as below. मतलब ये जो मैडम है वो कंपनी की कार ओन करती है, तो वो कंपनी केएमपी को बेनिफिट दे दे तो उसको डिस्क्लोज करना चाहिए। और उसकी डिटेल्स दी कि गाड़ी 380 lakhs की है, इनकम टैक्स के हिसाब से उसकी वैल्यू है परक्विजिट की 35 lakhs, जिसपे रत्ना मलिक टैक्स भरेगी। और कंपनी ने उस पे डेप्रिसिएशन बुक्स में अकाउंट फॉर किया है किसका? 76 लाख। ठीक है, ये ऑब्जर्वेशन। और चौथी ऑब्जर्वेशन, सेल्स नॉट एट मार्केट रेट। ड्यूरिंग द ईयर द कंपनी हैज सोल्ड डायमंड स्टडेड ज्वेलरी आइटम्स अमाउंटिंग टू 20 lakhs टू जिरकॉन लिमिटेड, ये मेरी सब्सिडियरी है। ड्यूरिंग द ईयर द सेल्स ऑफ सेम क्वांटिटी ऑफ आइटम्स मेड टू अनरिलेटेड पार्टीज 25 lakhs। मतलब मैंने 100 यूनिट्स जो सब्सिडियरी को बेचे वो 20 लाख में बेचे, लेकिन 100 यूनिट्स जो है वो अनरिलेटेड पार्टी को 25 में बेचे। तो बोल रहा है कि ये जो आपका 20 का ट्रांजैक्शन है वो आर्म लेंथ पे नहीं लग रहा अपन को। इट अपियर्स that the unrelated party transaction is not at arm's length. Further, it is important to note that Zircon Limited is not eligible for full ITC. Okay. ये एनेक्शर क्या है? सिंपल है। मैंने नहीं बताया कि अपन ने दो चीज़ें मांगी, ग्रुप स्ट्रक्चर मांगा और पॉलिसी मांगी। उसके बाद अपन ने ट्रांजैक्शन की डिटेल मांगी, उसके हिसाब से ऑब्जर्वेशंस दी ऑडिटर ने किसको। तो बीच में जो इन्फॉर्मेशन है ना ट्रांजैक्शन, वो यहाँ पे है, देख लेते हैं। सेल्स टू सब्सिडियरी इतनी इतनी, सेल्स टू सब्सिडियरी इतना इतना, ठीक है। सेल्स टू सब्सिडियरी वापस इतना, परचेज फ्रॉम एसोसिएट इतना, परचेज फ्रॉम जेड विच इज एसोसिएट का एसोसिएट इतना 595 जो ऊपर अपन ने बात की, परचेज फ्रॉम रूबी सब्सिडियरी ऑफ एसोसिएट इतना, परचेज फ्रॉम कोरल जॉइंट वेंचर इतना, सेल टू सब्सिडियरी इतना। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन अपन ने क्यों उड़ाई? बिकॉज एक क्वेश्चन है कि प्रिपेयर रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर, उसमें ये इन्फॉर्मेशन खाली कॉपी पेस्ट मारनी है, ज़्यादा कुछ इसमें कुछ ज़्यादा देखना नहीं है, इसलिए थोड़ा उड़ा दी। नंबर छापते हैं, ठीक है, खत्म हो गया। 2 मिनट सांस लो, पढ़ लो, फिर अपन कंटिन्यू करते हैं आंसर की। चलिए, आई होप आप लोगों ने क्वेश्चन पढ़ लिया, केस स्टडी पढ़ ली है, तो अपन MCQs पे मूव कर सकते हैं। सबसे पहला, इज सफायर लिमिटेड अ रिलेटेड पार्टी ऑफ डायमंड लिमिटेड एज पर इंड AS 24? इधर देखो, सफायर लिमिटेड कौन है? जेवी की सब्सिडियरी। जेवी की सब्सिडियरी किसकी? जेवी, डायमंड लिमिटेड। डायमंड लिमिटेड की जेवी की सब्सिडियरी। अच्छा, इंड एस का पैरा 12, पैरा 12 का यहाँ पे रेफरेंस दिया गया है, पैरा 12 का रेफरेंस दिया गया है। उसमें ऐसा बोला गया है कि जेवी इंक्लूड्स इट्स सब्सिडियरीज, जेवी इंक्लूड्स इट्स सब्सिडियरी, मतलब जेवी की सब्सिडियरी। और इंडेस 24 ऐसा बोलता है कि आपकी जेवी है वो आपकी रिलेटेड पार्टी, मतलब जेवी इज माई रिलेटेड पार्टी और जेवी इंक्लूड्स इट्स सब्सिडरीज, मतलब मेरी सफायर लिमिटेड जो है वो मेरी रिलेटेड पार्टी मानी जाएगी। ठीक है, सिंपल। पूरा इंडेस का वो मैं ज्ञान नहीं दे रहा बिकॉज कोई मतलब नहीं है। यस, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, सेकंड, at what amount should Diamond Limited disclose the non-monetary benefit provided to KMP in the related party disclosures? इधर देखो, जो KMP है वो कंपनी की गाड़ी में घूमती है, ठीक है।
तो केएमपी के साथ कोई नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन हुआ है तो क्या इंड एस 24 बोलता है उसको डिस्क्लोज करना पड़ेगा? यस बोलता है, लेकिन कौन से अमाउंट पे डिस्क्लोज करना पड़ेगा उसके लिए हमको पढ़ना पड़ेगा इंड एस 19 एम्प्लॉय बेनिफिट। और इंड एस 19 ये बोलता है कि आपने जो भी नॉन मॉनेटरी बेनिफिट दिया है किसको, अपने एम्प्लॉय को, जो भी नॉन मॉनेटरी बेनिफिट दिया है अपने एम्प्लॉय को, उसका डिस्क्लोजर या उसका जो वैल्यू डिटर्मिनेशन, उसका वैल्यू डिटर्मिनेशन है वो वैसे ही होगा जैसा आप मॉनेटरी बेनिफिट में करते हो, वो वैसा ही होगा जैसा आप मॉनेटरी बेनिफिट में करते हो। अच्छा, अब ध्यान, परचेस प्राइस ऑफ कार 380 लैक्स, क्या मैं पूरी अमाउंट डिस्क्लोज कर दूं? नहीं। क्यों? मैंने गाड़ी बेची नहीं है। गाड़ी बेची होती अपने डायरेक्टर को मैं बोल देता कि 380 लैक्स की गाड़ी है, मैंने इतने में बेची, इतना मेरा गेन लॉस। ठीक है। वैल्यू ऑफ परक्विजिट अंडर इनकम टैक्स, क्या ये डिस्क्लोज कर दूं एज एम्प्लॉय बेनिफिट? नहीं, बिकॉज ये जो अमाउंट है, ये अमाउंट का दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है उस वैल्यू के, उस बेनिफिट से। ये तो इनकम टैक्स ने किसी भी एक्स वाई जेड फॉर्मूला से बोला है कि इतनी वैल्यू होगी, बट क्या ये वैल्यू एक्चुअली वो वैल्यू है जिस वैल्यू का बेनिफिट हमने अपने केएमपी को दिया है? तो कौन सा है? ध्यान, डेप्रिसिएशन चार्ज इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अच्छा, डेप्रिसिएशन होता क्या है? मैंने एक कार खरीदी, मैंने एक कार खरीदी जिसकी यूज़फुल लाइफ 10 साल है। मैंने एक कार खरीदी 100 रुपये की जिसकी यूज़फुल लाइफ 10 साल है। ठीक है। तो मैं हर साल 10 रुपये पीएनएल में चार्ज करता हूँ। ये जो 10 रुपये जो मैंने पीएनएल में चार्ज किए वो क्या इंडिकेट करते हैं? ये जो कॉस्ट है 100 रुपये की, उसको मैं हर साल स्प्रेड कर रहा हूँ ओवर द यूजफुल लाइफ ऑफ दैट एसेट। मैंने 100 रुपये की कार खरीदी, 10 साल उसकी यूजफुल लाइफ है, तो मैं हर साल 10 10 10 10 बुक कर रहा हूँ। और मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि ये जो 10 रुपये है, इट शोज कि मैंने एक साल अगर गाड़ी यूज़ की, एक साल अगर गाड़ी यूज़ की तो मैंने 10 रुपये का वो एसेट यूज़ किया। क्यों? उसकी यूजफुल लाइफ 10 साल है, मैंने 100 की खरीदी तो मैंने 10 10 साल स्प्रेड किया। प्रिसाइजली अगर मैंने 76 लाख रुपीज़ का डेप्रिसिएशन चार्ज किया है एक साल में, दैट मीन्स कि मैंने वो 76 लाख रुपीज़ का बेनिफिट दिया है किसको? अपने डायरेक्टर को, क्योंकि कार मेरी है। ठीक है, कार मेरी है। अगर वो कंपनी में यूज़ हुई होती तो वो कंपनी के बेनिफिट के लिए होती है, फिर कंपनी ने उसको कंपनी ने उसको डेप्रिसिएशन चार्ज किया तो वो कंपनी के बेनिफिट के लिए होती है, लेकिन वो गया है एम्प्लॉय के बेनिफिट के लिए। तो मैं जो ये 76 लाख रुपीज़ है, बिकॉज इट इज़ अ चार्ज ओवर द यूजफुल लाइफ ऑफ एन एसेट, 76 लाख रुपीज़ शुड बी डिस्क्लोज्ड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एज एम्प्लॉय बेनिफिट टू केम। ठीक है। इंस्टीट्यूट का क्या आंसर है? देखिए क्या लिखा है इंस्टीट्यूट, मैंने पढ़ा नहीं है ऑनेस्टली। क्या बोल रही है अपनी महान इंस्टीट्यूट? Para 9 of India is 19 specified employee benefits, including non-monetary benefits. The cost of providing non-monetary benefits should be recognized according to same principles. Further, Para 9 of India is 24 requires disclosure of compensation paid to KMP, including non-monetary benefits. Such disclosure, मतलब इसने ऐसा नहीं बोला कि 76 का लॉजिक क्या है, क्या लिखा है? दिस माइट बी कैलकुलेटेड बाय रेफरेंस टू डेप्रिसिएशन। इसमें कोई प्रिसाइज रीजन नहीं दिया है, मैंने आपको प्रिसाइज रीजन दिया है, बिकॉज डेप्रिसिएशन इज द चार्ज ओवर द यूजफुल लाइफ ऑफ एन एसेट, so it best represents the benefit provided to that employee. Diamond Jewels Limited needs to determine the value of supply of diamond studded jewelry to compute GST on sale to Zircon Limited for FY ending 31st March 25 based on the given date. Invoice value 20 lakh. Value of supply of goods of like kind of quality 21 lakhs. Open market 25 lakhs. 90% of price charged for supply of goods of like kind and quality by Zircon to unrelated customer 20.7. 110% of cost of supply is 20.9. जस्ट अ सेकेंड। अब देखो, ये रूल 28 है आपका जीएसटी का, आप सबको आता ही होगा, जस्ट मैं आपको गो थ्रू करवा देता हूँ। चलो यहाँ पे मैंने लिखा, रूल 28 क्या बोलता है? वैल्यू ऑफ सप्लाई मेड टू रिलेटेड पार्टी और डिस्टिंक्ट पर्सन, रिलेटेड और डिस्टिंक्ट पर्सन। और रूल 28 ऐसे पढ़ना है कि ओपन मार्केट वैल्यू है, नहीं तो ये, नहीं तो ये, नहीं तो ये, ऐसा। तो ओपन मार्केट वैल्यू दिया हुआ है 25 लाख, तो वही यूज़ कर सकते हैं, लेकिन एक प्रोवाइजो है, एक्चुअली दो प्रोवाइजो है। सबसे पहला प्रोवाइजो क्या बोलता है कि अगर सप्लायर ने कुछ सप्लाई किया रेसिपिएंट को
और वो रेसिपिएंट फर्दर सप्लाई कर देता है आगे एज इट इज विदाउट एनी मॉडिफिकेशन, एज इट इज विदाउट एनी मॉडिफिकेशन। तो वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या होगी, 90% ऑफ प्राइस चार्ज टू अनरिलेटेड पर्सन। मतलब फॉर एग्जांपल मैंने 100 का, मैं रिलेटेड पार्टी में होल्डिंग, मैंने अपनी सब्सिडरी को 100 का गुड्स मैंने बेचा, उसने 120 में आगे बेच दिया विदाउट एनी मॉडिफिकेशन टू अनरिलेटेड पर्सन, तो 120 का 90% ले लो। अच्छा, ये जो एंटिटी है ये रिटेल सेल्स करती है, क्या करती है, रिटेल सेल्स, रिटेल सेल्स करती है, कोई मैन्युफैक्चरिंग नहीं करती। मतलब उससे ऐसा इंट्यूशन आता है कि ये एज इट इज़ आगे बेच देगी, एज इट इज़ आगे बेच देगी। अच्छा, एज इट इज़ आगे कितने में बेचा है, कितने में बेचा है, वो अपन को क्वेश्चन में दिया हुआ है। एज इट इज़ आगे कितने में बेचा है वो अपन को क्वेश्चन में दिया हुआ है। 90% ऑफ द प्राइस चार्ज कितना है, 20.7। तो ये वैल्यू भी ले सकते हैं, ये वैल्यू भी ले सकते हैं। अच्छा, ये वैल्यू है तो ये वैल्यू लेने की ज़रूरत ही नहीं है, ये वैल्यू लेने की ज़रूरत ही नहीं। इनवॉइस वैल्यू नहीं ले नहीं सकते बिकॉज इसके लिए अलग रूल दिया है, रूल 28। तो बोलता है कि आपको रिलेटेड पार्टी या डिस्टिंक्ट पर्सन से आपको अगर कोई सप्लाई की है तो इनवॉइस वैल्यू नहीं, ये वैल्यू लेना है। इसमें ये वैल्यू ना बोल दी, ये वैल्यू ना बोलती, ये वैल्यू दिए सबसे पहले प्रेफरेंस में, तो ये वैल्यू भी दी है। अच्छा, और एक प्रोवाइजो, सेकंड प्रोवाइजो क्या बोलता है कि अगर रेसिपिएंट को फुल आईटीसी अवेलेबल है, रेसिपिएंट को अगर फुल आईटीसी अवेलेबल है तो इनवॉइस वैल्यू विल बी वैल्यू ऑफ सप्लाई, इनवॉइस वैल्यू विल बी वैल्यू ऑफ सप्लाई। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे देखो, इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट जिरकॉन लिमिटेड इज नॉट एलिजिबल फॉर फुल आईटीसी। मतलब ये सेकंड प्रोवाइजो भी अपन अप्लाई नहीं कर सकते। तो वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या है, वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या होगी, 25 या 20.7, 25 या 20.7, मतलब 3 और 4, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। बात समझ में आई, कुछ था नहीं, बहुत इजी था। The company is expected to incur certain cost throughout its life cycle. Choose the correct statement। इधर लाइफ साइकिल कॉस्टिंग का वो वाला वीडियो देख लेना। मैं आप लोगों को फटाफट से बता देता हूँ कि भाई कौन सा एक्सपेंस कौन से हेड में फॉल करेगा, कौन सा एक्सपेंस कौन से हेड में फॉल करेगा। यहाँ पे पूरा एक्सपेंस की कथा यहाँ पे दी है, ठीक है। ये पूरा अपन उठा लेते हैं भी। आ जाओ, क्या बोल रहा है, 460 फॉर मटेरियल, 460 फॉर मटेरियल। अच्छा, आप लाइफ साइकिल को 4 पार्ट में डिवाइड कर देना, कौन कौन सी, डिज़ाइन, मैन्युफैक्चरिंग, ऑपरेशंस एंड एंड। अच्छा, ये चारों साइकिल का मतलब क्या है वो वीडियो में देख लें, ज़्यादा टाइम नहीं लगे। अच्छा, जो मटेरियल है वो कहाँ पे आएगा, मैन्युफैक्चरिंग में, ठीक है। रिसर्च कहाँ आएगा, रिसर्च फेज में। डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ पे आएगा, ऑपरेशन फेज में। मैंने मैन्युफैक्चरिंग कर ली, उसके बाद मैं डिस्ट्रीब्यूशन करूँगा, करेक्ट। 300 लाख फॉर डेवलपमेंट कहाँ पे आएगा, अपने रिसर्च एंड डिज़ाइन फेज में। डिज़ाइन मतलब रिसर्च डेवलपमेंट टेस्टिंग सब। 380 फॉर लेबर आ गया, 500 फॉर ओवरहेड आ गया मैन्युफैक्चरिंग में। 30 फॉर डिस्पोजल, डिस्पोजल मतलब जब मेरी लाइफ साइकिल खत्म हो गई तो उसके रिलेटेड जो भी मशीनरी पड़ी है, जो भी एक्सेस इन्वेंट्री पड़ी है, उसको डिस्पोज, बेच देने की प्राइस, तो एंड ऑफ लाइफ साइकिल में आएगा। 500 लाख फॉर ट्रेनिंग, ट्रेनिंग कहाँ पे आएगा, मैन्युफैक्चरिंग में। एक बार डिज़ाइन हो गया फिर आप ट्रेन करोगे ना कि कैसे मैन्युफैक्चर करेंगे, तो वहाँ पे ट्रेनिंग। 170 फॉर मेंटेनेंस, मेंटेनेंस भी मैन्युफैक्चरिंग में ही आएगा। 70 फॉर एनवायरमेंटल क्लीनअप, एनवायरमेंटल क्लीनअप कहाँ पे आएगा, एंड ऑफ लाइफ साइकिल में। और मैं कुछ छूट गया क्या, 200 फॉर डिज़ाइन एंड टेस्टिंग, वो यहाँ पे आ जाएगा टेस्टिंग का। 85 फॉर वारंटी क्लेम्स, अच्छा बेचोगे तो ये वारंटी आएगी तो ऑपरेशन में चला जाएगा। सिंपल है, 200, 2010, 135, सॉरी 600, 2010, 135 एंड 100। इसका कॉन्सेप्ट आप वो वीडियो में देख लेना, मैं नहीं ले रहा है इसका कॉन्सेप्ट, तो आधा 1 घंटा निकल जाएगा, तो मैं वही 600, 2010 मतलब ये ऑप्शन गलत है, 135, 100, तो आपका ये ऑप्शन सही है, ठीक है, ठीक है। आपका ऑप्शन बी राइट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट लाइकली टू बी ट्रू अबाउट डायमंड लिमिटेड मैनेजमेंट स्ट्रक्चर एंड स्ट्रैटेजी। अच्छा, मैंने यहाँ पे वर्ड लिखा है सब्सिडियरी,
जो डायमंड लिमिटेड है उसकी बहुत सारी सब्सिडीज है, बहुत सारी सब्सिडीज है, ऑप्शन पढ़ते हैं। रिड्यूसेस टॉप मैनेजमेंट ऑपरेशनल बर्डन व्हाइल अलाइनिंग डिविजनल गोल्स एंड स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स। डिविजनल गोल्स एंड स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स रिड्यूसेस टॉप मैनेजमेंट ऑपरेशनल बर्डन। अच्छा, सब्सिडियरी मैंने खोली है तो ऑफकोर्स सब्सिडियरी का ऑपरेशनल बर्डन तो सब्सिडियरी पे ही होगा, तो ये ऑप्शन गलत है। क्यों गलत है? बिकॉज ये बेस्ट फिट नहीं करा, मोस्ट लाइकली आंसर नहीं है। The decentralized management structure promotes autonomy and accountability। वापस सब्सिडियरी अकाउंटेबल होते हैं अपने ऑपरेशंस के लिए, क्योंकि उसके अलग फाइनेंशियल्स बनते हैं, उसका असेसमेंट परफॉर्मेंस का अलग होता है। तो ये भी मोस्ट लाइकली ऑप्शन नहीं है, सही है बट मोस्ट लाइकली ऑप्शन नहीं। अच्छा, यहाँ पे सिर्फ डिविजनल स्ट्रक्चर होता तो ये ऑप्शन सही है। Responsibility centers operate independently of the company's strategic vision and managers focusing solely on achieving short-term profitability targets। नहीं, long-term profitability targets के लिए भी आपके जो मैनेजर्स है वो काम करते हैं। By delegating operational responsibilities, Diamond Limited most likely achieves a balance between regional adaptability and alignment of divisional objectives with overarching strategic goals। ये ऑप्शन सही है। क्यों? डायमंड लिमिटेड क्या करता है, जहाँ पे भी किसी भी रीजन में अगर उसको जाना है या अपने प्रोडक्ट्स को पहुँचाना है, वहाँ पे एक सब्सिडियरी खोल के बैठ जाता है। वहाँ पे एक सब्सिडियरी खोल दी, मतलब वहाँ पे पूरा इंडिपेंडेंट ऑपरेशन एक पर्टिकुलर सब्सिडियरी को दे दिया कि यहाँ का तू ऑपरेट कर, ताकि वहाँ पे उसका उसका लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक विजन क्या है कि मुझे इस इस मार्केट में बड़ा बनना है। अच्छा, उसके लिए उसने क्या किया, सब्सिडियरी खोल दी, वहाँ पे वो अपना काम कर रही है और मैं उन सब्सिडियरीज को सिर्फ मॉनिटर कर रहा हूँ। तो मेरा काम क्या हो गया, सब्सिडियरीज को मॉनिटर करना, बाकी वो अपना अपना देख लेगी। तो बाय डेलीगेटिंग ऑपरेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैं उन कंपनी के ऑपरेशनल में दखल नहीं दे रहा, वो खुद करेगी। डायमंड लिमिटेड मोस्ट लाइकली अचीव द बैलेंस बिटवीन रीजनल अडेप्टेबिलिटी, मैंने वहाँ पे नया सब्सिडरी खोल के वहाँ पे जो मेरा प्रोडक्ट है वो बिकना स्टार्ट हो गया, एंड अलाइनमेंट ऑफ डिविजनल ऑब्जेक्टिव्स विद इट्स ओवर आर्किंग स्ट्रैटेजिक गोल्स। क्योंकि उन डिवीजन और उन सब्सिडरीज के बीच में भी मैं ट्रांजेक्शन्स करवाता हूँ, मॉनिटर करता हूँ, तो उनका जो अपना इंडिविजुअल प्रॉफिटेबिलिटी हो भी सॉर्ट हो जाती है। बात समझ में आई? अच्छा, ये थोड़ा सा ना सब्जेक्टिव था, ऐसा कुछ आता है तो ये थोड़ा 2 मार्क का रिस्क रहता है, बिकॉज केस स्टडी में ये पर्टिकुलर एमसीक्यू था सब्जेक्टिव। डिस्क्रिप्टिव, प्रिपेयर अ डिस्क्लोजर ऑफ रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस इन कंप्लायंस विद रिक्वायरमेंट्स ऑफ इंडिया 24। ऐसा बोला है कि डिस्क्लोजर बनाओ। अच्छा, इसमें क्या करेंगे अपन, इंस्टीट्यूट का डिस्क्लोजर फॉलो करेंगे। अच्छा, इंस्टीट्यूट ने कैसा डिस्क्लोजर बनाया है, मेरी बहुत सारी सब्सिडियरीज है, एसोसिएट है, जेवी है, उनके साथ बहुत सारे ट्रांजैक्शन है, करेक्ट। तो इंस्टीट्यूट ने ऐसे बनाया है कि ट्रांजैक्शन ऐसे और एंटिटी ऐसे। अच्छा, डिस्क्लोजर बना रहा हूँ तो मैं कंपेरेटिव पीरियड भी दूंगा, तो करंट ईयर यहाँ पे, प्रीवियस ईयर यहाँ। बट मैं जितनी कंपनीज के साथ काम करता हूँ और मैंने जिन कंपनीज को ऑडिट किया है, वहाँ पे वो लोग ऐसे बनाते हैं कि ट्रांजैक्शन यहाँ दे देते हैं और एंटिटी यहाँ पे दे देते हैं, और करंट ईयर ऐसे देते हैं, प्रीवियस ईयर ऐसे देते हैं। ठीक है, तो फॉर्मेट के पीछे मत भागो, बिकॉज फॉर्मेट में एज सच कुछ ऐसा टेंशन नहीं है। आप कोई भी फॉर्मेट, ये फॉर्मेट भी यूज़ कर सकते हो, आप ये भी यूज़ कर सकते हो, चॉइस इज योर्स। इंस्टीट्यूट ने ये किया है। अच्छा, इंस्टीट्यूट ने और एक चीज़ की है, ट्रांजेक्शन ऐसे दिए और रिलेटेड पार्टी ऐसे दी। ठीक है, अच्छा, मेरी 4 सब्सिडियरीज है, करेक्ट, लेकिन ये जो टोपाज लिमिटेड है, ये सबसे ज़्यादा ट्रांजैक्शंस इसके साथ हुए हैं, और बाकी की जो सब्सिडियरीज है उनके साथ बहुत कम ट्रांजैक्शंस हुए। इंस्टीट्यूट ने क्या किया, टोपाज लिमिटेड को अलग से दिखाया, अदर सब्सिडियरीज को मर्ज कर दिया, तो यहाँ पे एक नोट दे दी। यहाँ पे नोट में ये ऐसा बोल रहा है कि इंडेस ऐसा बोलता है कि कई बार मेरी जो सब्सिडियरीज होती है वो बहुत सारी होती है और बहुत ज़्यादा उनके साथ ट्रांजैक्शन होते हैं, तो मेरा डिस्क्लोजर हो सकता है कि बहुत बड़ा हो जाए, बहुत वॉल्यूमनस डिस्क्लोजर हो जाए, टू वॉल्यूमनस डिस्क्लोजर हो जाए। उसकी वजह से इंडेस बोलता है कि आपने अगर सिमिलर नेचर की एंटिटी है, मतलब सारी सब्सिडियरीज है और उनके साथ सिमिलर नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन की है, मतलब मेरी 10 सब्सिडियरीज है, 10 को मैंने एक ही माल बेचा है, तो मैं क्या करूँगा, उन 10 सब्सिडियरी को अदर सब्सिडियरी करके क्लब कर दूँ। लेकिन क्लब करते टाइम आपको ये ध्यान देना है कि उसका जो इफेक्ट है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ दैट इफेक्ट, वो प्रेजुडाइज नहीं होना चाहिए। मतलब
जो अंडरस्टैंडिंग बैठ रही हो सही बैठनी चाहिए, मतलब ट्रू एंड फेयर, सिंपल ट्रू एंड फेयर भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मुझे एक पर्टिकुलर सब्सिडरी के साथ कुछ घपला किया, ट्रांजैक्शन दिखाया ना नहीं, इसलिए मैंने उसको क्लब कर दिया दूसरी सब्सिडरीज के साथ, ऐसा आप नहीं कर सकते। ठीक है। बाकी इंस्टीट्यूट ने क्या बनाया है इस डिस्क्लोजर को, यहाँ पे फटाफट देख लो। इस टेबल से बनाया है इंस्टीट्यूट। सेल्स, सब्सिडियरी सब्सिडियरी सब्सिडियरी, ये तीन, और हाँ इन तीन सब्सिडियरीज को, ये दो सब्सिडियरीज को मर्ज कर दिया और इसको अलग से दिखा दिया। 20 + 36 56, तो यहाँ पे 56 दिखेगा आपको। ये 56, ठीक है। तो उस टेबल से ही बनाया है, प्लस यहाँ पे वो के वाला अलग से दिखा है, जो मैं अपन ने अभी एमसीक्यू डिस्कस किया ना, जहाँ पे 76 का डिप्रिसिएशन आपको डिस्क्लोज करना चाहिए, तो वो किया है। और यहाँ पे एंटिटीज वर सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंसेस एक्सरसाइज बाय के उसको ब्लैंक छोड़ दिया है क्योंकि उसकी कोई इन्फॉर्मेशन। ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप खुद से कर लेना, ये क्वेश्चन मेरी तरफ से आपको होमवर्क है, मैंने आपको कभी होमवर्क नहीं दिया ना, तो हम घर पे ही बैठे हैं फिर भी होमवर्क है। ठीक है, ये आप कर लेना। प्लस यहाँ पे जो ट्रांजैक्शन डिस्क्लोज की है ना, उसके ऊपर आपको एक और चीज़ डिस्क्लोज करनी पड़ती है कि आपकी कौन कौन सी सब्सिडियरीज है और कौन कौन सी दूसरी रिलेटेड पार्टीज है। अच्छा, सब्सिडियरीज को आपको मैंडेटरीली डिस्क्लोज करना पड़ता है, लेकिन ये जो एसोसिएट टाइप की एंटिटीज है उनको आपको तो ये डिस्क्लोज करना पड़ता है जो आपका उनके साथ ट्रांजैक्शन हो। इंडेक्स 24 में आप डिटेल में पढ़ोगे। ठीक है। तो ये उन एंटिटीज के इन्फॉर्मेशन दिया है और यहाँ पे आपको उनके साथ के ट्रांजैक्शन दिया। ट्रांजैक्शन में इंस्टीट्यूट ने क्या नया किया वो मैंने आपको समझा दिया, और उसका रैशनल उन्होंने क्या बताया वो भी मैंने आपको बताया। ठीक है। ये अब कर लेना, ऐसा क्वेश्चन अनलाइकली है आने का, आई डोंट बिलीव ऐसा क्वेश्चन आ सकता। फिर क्वेश्चन, provide a brief summary of audit procedures to mitigate the risk of unidentified or undisclosed related parties। अच्छा, इसमें भी इंस्टीट्यूट का आंसर फटाफट देख लेते हैं। अच्छा, थोड़ा जो डिस्कशन मुझे करना है मैं 2 मिनट में बता देता हूँ, तो इंस्टीट्यूट का आंसर देख के खत्म करते हैं। SA 550 क्या बोलता है? SA 550 बोलता है कि रिलेटेड पार्टीज को आइडेंटिफाई करने की और ट्रांजैक्शंस को डिस्क्लोज करने की, रिलेटेड पार्टीज को आइडेंटिफाई करने की और ट्रांजैक्शंस को डिस्क्लोज करने की जो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो किसकी है? मैनेजमेंट। ठीक है, मैनेजमेंट। अच्छा, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस के केस में हाई रहता है। रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन के केस में हाई रहता है, मतलब आपको ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है इन ट्रांजैक्शंस। अच्छा, ज़्यादा ध्यान किन चीज़ों में दोगे? सबसे पहली चीज़, आप कोई भी ऑडिट प्रोसीजर कर रहे हो, कोई भी ऑडिट प्रोसीजर कर रहे हो, उस टाइम पे एज एन ऑडिटर आपको अलर्ट रहना है कि कोई ऐसे ट्रांजैक्शंस किसी ऐसी पार्टी के साथ है, कोई ऐसे ट्रांजैक्शन किसी ऐसी पार्टी के साथ है जो एक पोटेंशियली रिलेटेड पार्टी है बट मैनेजमेंट ने मुझे बताया नहीं है। उससे कोई ऐसे ट्रांजैक्शन किसी ऐसी पार्टी के साथ है जो मैनेजमेंट ने मुझे बताया नहीं है बट मेरे हिसाब से वो रिलेटेड पार्टी है। मतलब during the audit, the auditor shall remain alert while inspecting records for arrangements and other information that may indicate the existence of related party relationship or transaction that management has not previously identified or disclosed। ऐसा हो सकता है कि मैनेजमेंट से आइडेंटिफाई नहीं हुआ, ऐसा भी हो सकता है मैनेजमेंट ने आइडेंटिफाई किया जान के आपको बताया। ठीक है, अगर ऐसा हुआ तो क्या करना है? अगर ऐसे ट्रांजैक्शंस या ऐसी रिलेशनशिप्स आपको आइडेंटिफाई हो गई जो पोटेंशियली रिलेटेड पार्टी है, मैनेजमेंट ने आपको बताया नहीं, तो आपको क्या करना है? प्रॉम्प्टली कम्युनिकेट द रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन टू अदर मेंबर्स ऑफ द एंगेजमेंट टीम। आपको पता चला, आपको डिंडोरा पीटना है। दूसरा, रिक्वेस्ट मैनेजमेंट टू आइडेंटिफाई ऑल ट्रांजैक्शन विद द न्यूली आइडेंटिफाइड रिलेटेड पार्टी फॉर ऑडिटर्स फर्दर इवैल्यूएशन। फॉर एग्जांपल, ए लिमिटेड का ऑडिट कर रहा था, मुझे सी लिमिटेड मिली कि भाई ये तो रिलेटेड पार्टी है। क्यों भाई? ए का कोई डायरेक्टर है, उसका कोई रिलेशनशिप है जिसकी वजह से ये जो है वो अब रिलेटेड पार्टी है। तो मैनेजमेंट को बोलना है कि सी लिमिटेड के साथ सारे ट्रांजेक्शन्स का मुझे कच्चा चिट्ठा चाहिए। इंक्वायर एज टू वाई द एंटिटीज कंट्रोल ओवर रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप्स एंड ट्रांजेक्शन फेल्ड। आपसे ऐसी गलती क्यों हुई, उसके रिलेटेड आपको इंक्वायरी और डिस्कशन करना है। किसके साथ? मैनेजमेंट के साथ।
इफ द नॉन डिस्क्लोजर बाय मैनेजमेंट अपीयर्स इंटेंशनल, आपने उनके साथ डिस्कशन किया और आपको लगा ये तो जान के मुझे टोपी पहना रहा है, तो therefore indicative of risk of material misstatement due to fraud, evaluate the implication of on the audit। मतलब आपने उनको पूछा कि आपका कंट्रोल कैसे लैप्स हुआ, आप इंक्वायरी कर रहे थे, आपको लगा नहीं यार इसने मुझे जान के नहीं बताया, तो आपको चेक करना है कि भाई ये कोई फ्रॉड का इंडिकेशन तो नहीं है। परफॉर्म अप्रोप्रिएट सब्सटैंटिव ऑडिट प्रोसीजर रिलेटिंग टू सच न्यूली आइडेंटिफाइड पार्टी, रिकंसिडर द रिस्क that other related parties or significant related party transactions may exist that management is not previous। मैंने मेरे को previously identified, मेरे को एक पार्टी मिली ए लिमिटेड का, मैं ऑडिट कर रहा था, मेरे को सी लिमिटेड मिली। तो वो ऐसा हो सकता है ना कि सी हो, फिर डी हो, फिर ई हो, जो मैनेजमेंट ने आइडेंटिफाई नहीं की, बिकॉज मुझे एक मिली, मैं तो कुछ और काम कर रहा था और मुझे एक ऐसी पार्टी मिल गई जो रिलेटेड पार्टी निकली। तो अब क्या करना है, अब मुझे क्या करना है, रिकंसिडर द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, कि मुझे तो एक मिली, हो सकता है 100 हो सकता है 200 हो, तो मुझे रिकंसिडर करना है अपना रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट एंड परफॉर्म एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर्स एज। तो ये सब चीज़ आपको करनी है, बात समझ में आई। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सब आप ऑडिट में पढ़ते हो, मैं तो आपको इस कॉन्टेक्स्ट में बिठा के दे देता हूँ कि भाई इस कॉन्टेक्स्ट में, इस केस स्टडी के कॉन्टेक्स्ट में आप इसको कैसे कर सकते हैं। डू ट्रांजैक्शंस विद जेड लिमिटेड रिक्वायर द अप्रूवल ऑफ ऑडिट कमिटी, एनालाइज। जेड लिमिटेड कौन है यहाँ पे, जेड लिमिटेड है डायमंड एमराल्ड जे, डायमंड एमराल्ड जे, डायमंड एमराल्ड जे, वापस नहीं, डायमंड एमराल्ड इज एसोसिएट ऑफ डायमंड एंड जेड इज एसोसिएट ऑफ एमराल्ड। मतलब जो डायमंड के लिए जेड क्या है, डायमंड के लिए जेड क्या है, एसोसिएट ऑफ एसोसिएट, एसोसिएट ऑफ एसोसिएट। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या है कि एसोसिएट ऑफ एसोसिएट के साथ मैं कोई ट्रांजैक्शन कर रहा हूँ, एसोसिएट ऑफ एसोसिएट के साथ, तो क्या उसके लिए ऑडिट कमेटी का अप्रूवल लगता है। एसोसिएट के एसोसिएट के साथ अगर मैं कोई ट्रांजैक्शन कर रहा हूँ तो क्या उसमें ऑडिट कमेटी का अप्रूवल लगता है। यहाँ पे इंटरेस्टिंग है, सेबी एलओडीआर बोलता है कि हम इन कंपनीज को रिलेटेड पार्टी मानेंगे। तो सेबी एलओडीआर के हिसाब से रिलेटेड पार्टी की डेफिनेशन बता रहा हूँ। सबसे पहले बोलता है अंडर सब सेक्शन 76 ऑफ सेक्शन 2 ऑफ कंपनीज एक्ट, मतलब सेबी एलओडीआर बोलता है कंपनीज एक्ट में रिलेटेड पार्टी है तो रिलेटेड पार्टी, रिलेटेड पार्टी अंडर एप्लीकेबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इंड एस 24 में रिलेटेड पार्टी है तो रिलेटेड पार्टी, प्लस प्लस ये दो पॉइंट। सबसे पहला, एनी पर्सन और एंटिटी फॉर्मिंग पार्ट ऑफ प्रमोटर और प्रमोटर ग्रुप ऑफ द लिस्टेड एंटिटी, प्रमोटर का तो कोई डिटेल नहीं दिया तो गोली मारो। एनी पर्सन और एंटिटी होल्डिंग इक्विटी शेयर्स 20% और मोर और 1 अप्रैल से 10% और मोर इन द लिस्टेड एंटिटी इधर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। मतलब कंपनीज एक्ट के हिसाब से रिलेटेड है तो है, इंडेस के हिसाब से है तो है, प्रमोटर ग्रुप के अंदर कोई एंटिटी या पर्सन है तो है, और चौथा 10% या उससे ज्यादा का शेयर होल्डिंग है तो है। अच्छा, डायमंड लिमिटेड का 25% होल्डिंग है एमराल्ड में और उसका 22% है जेड में, तो इनडायरेक्टली मेरा कितना हुआ, इनडायरेक्टली मेरा कितना हुआ 25 का 22%, मतलब 5.5%, करेक्ट 5.5%। अच्छा 5.5% तो 10% से नीचे है, 10% से नीचे है, तो क्या सेबी एलओडीआर के हिसाब से, सेबी एलओडीआर के इन दो कंडीशंस के हिसाब से, हमने ये दो चेक नहीं करी, इन दो कंडीशंस के हिसाब से क्या जेड रिलेटेड पार्टी है, नहीं है। अब ये दो कंडीशन चेक करते हैं, सबसे पहले कंपनीज एक्ट चेक करते हैं। कंपनीज एक्ट की 2 clause 76 अपन देख रहे हैं, ध्यान दो। रिलेटेड पार्टी विद रेफरेंस टू कंपनी मींस डायरेक्टर रिलेटिव केएमपी फर्म, फर्म की कोई बात नहीं है, प्राइवेट कंपनी की कोई बात नहीं है, पब्लिक कंपनी की कोई बात नहीं है। एनी बॉडी कॉर्पोरेट हुज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एमडी और मैनेजर आर कस्टम टू एक्ट, ऐसी कोई बात इस केस स्टडी में नहीं है, यहाँ पे ध्यान दो। एनी बॉडी कॉर्पोरेट विच इज होल्डिंग सब्सिडियरी और एसोसिएट ऑफ सच कंपनी, होल्डिंग अपन किसको इवेल्युएट कर रहे हैं, एसोसिएट ऑफ एसोसिएट को, अपन किसको इवेल्युएट कर रहे हैं, एसोसिएट ऑफ एसोसिएट को, होल्डिंग सब्सिडियरी और एसोसिएट ऑफ सच कंपनी। तो एसोसिएट तो है, एसोसिएट ऑफ एसोसिएट है या नहीं वो देख रहे हैं।
सब्सिडियरी ऑफ होल्डिंग कंपनी टू विच इट इज ऑल्सो अ सब्सिडियरी, मतलब सिस्टर सब्सिडियरी, सिस्टर कंसर्न। एन इन्वेस्टिंग कंपनी और द वेंचरर ऑफ अ कंपनी, एन इन्वेस्टिंग कंपनी और अ वेंचरर ऑफ अ कंपनी, यहाँ पे भी एसोसिएट ऑफ एसोसिएट की बात नहीं आई। तो कंपनीज एक्ट के हिसाब से भी, कंपनीज एक्ट के हिसाब से भी एसोसिएट ऑफ एसोसिएट इज नॉट अ रिलेटेड पार्टी। ठीक है, तो ये चेक कर लिया, ये चेक कर लिया, ये देख लेते हैं। इंडेस 12 सॉरी इंडेस 24 बोलता है कि आपकी सब्सिडियरी, आपकी जॉइंट वेंचर और आपकी एसोसिएट, सब्सिडियरी जॉइंट वेंचर एसोसिएट आर रिलेटेड पार्टीज मान लिए। अपन ने फर्स्ट एमसीक्यू में देखा था कि जॉइंट वेंचर इंक्लूड्स सब्सिडियरी ऑफ जॉइंट वेंचर। वैसे ही पैरा 12 बोलता है एसोसिएट इंक्लूड्स सब्सिडियरी ऑफ, एसोसिएट इंक्लूड्स सब्सिडियरी ऑफ एसोसिएट बट नॉट एसोसिएट ऑफ, associate includes subsidiary of associate, associate does not include associate। ये कंडीशन भी फेल हो गई, ये भी हो गई, ये भी हो गई। तो मतलब जेड के साथ जो भी ट्रांजैक्शन किया उसके लिए, जेड के साथ जो भी ट्रांजैक्शन किया उसके लिए ऑडिट कमेटी की अप्रूवल की जरूरत नहीं है, बिकॉज वो रिलेटेड पार्टी ही नहीं है। किसके हिसाब से? सारी कंडीशंस के हिसाब से जो अपन ने अभी चेक की। इंस्टीट्यूट का आंसर देखिए, थोड़ा फैला के लिखा इंस्टीट्यूट ने, मैंने आपको थोड़ा सा कंसाइज फॉर्म में बताया। फाइनली देख लेते हैं भाई। Since Jade Limited is not a related party under Companies Act, Ind AS or the BLODR, this proposed transaction does not require approval of audit. Last, last one थोड़ा इंटरेस्टिंग है, ध्यान देना। Would Diamond Limited benefit if Italy branch purchases from India branch? Comment देखो वापस से, जो डायमंड लिमिटेड है, जो डायमंड लिमिटेड है उसका एक इटली डिवीजन है, उसका एक अहमदाबाद डिवीजन है। ठीक है, इन दोनों के बीच में कोई ट्रांसफ़र होने वाला है। क्वेश्चन ये पूछता है कि इन दोनों के ट्रांसफ़र के हिसाब से, या इन दोनों के बीच में जो ट्रांसफ़र हुआ उसके वजह से डायमंड लिमिटेड को कोई बेनिफिट होगा या नहीं। आइए देख, इस एपिसोड में आइए देखते हैं। यहाँ पे पढ़ लेते हैं फटाफट, तो वो वाला जो पोर्शन है ना जहाँ पे डेटा दिया है वो पढ़ लेते हैं। Ahmedabad division has an annual production capacity of 120 units of Gem Indo, while retail gems with its smaller manufacturing capacity can produce Gem Milano up to 50,000 units annually. In the Italian market, the local purchase price of similar item is 1600 euros, equivalent to 1,44,000 rupees. Diamond Limited is exploring the feasibility of transferring its items suitably adapted to meet the Italian culture preferences from Ahmedabad division to retail gems. The cost to Italy division for such transfer would be 1700 euros. यहाँ पे एक लाइन दी, मैं आपको वापस इस लाइन पे लेके आऊँगा, तो हाईलाइट कर। This price includes all associated costs such as duties, taxes and handling charges. For external sales in India, Gem Indo is priced at 1,08,000 per unit. When sold to retail gems in its suitably modified version, the transaction is carried out at an ALP arm's length price of 1400. मतलब सेलिंग प्राइस 1400 है, लेकिन जो इटली डिवीजन है उसके लिए कॉस्ट प्राइस है 1700। तो ये 300 का गैप क्या है? ये ड्यूटीज एक्सेट्रा जो उन्होंने ऊपर बोला है, ये 300 यूरो का ये है। ठीक है, तो सेल्स प्राइस अपन 1400 गिनेंगे, लेकिन परचेज अपन 1700 गिनेंगे। ठीक है, द करंट सेल्स वॉल्यूम इज 1 लाख यूनिट्स, पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट इज 80, लेकिन 74 ही है इन केस ऑफ इंटरनल ट्रांसफर, और एडिशनल 24,000 रुपीज़ का मुझे एक मॉडिफिकेशन कॉस्ट इनकर करना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं ना, अपन दोनों डिवीजन का इंडिविजुअली देख लेते हैं कि दोनों डिवीजन को क्या बेनिफिट और क्या कॉस्ट होगा। सबसे पहले अपन एक चीज़ देखते हैं, मैन्युफैक्चरर कौन है? अहमदाबाद डिवीजन। तो अहमदाबाद डिवीजन कितना कंट्रीब्यूशन कमा रहा है अपन वो चेक करते हैं। ठीक है, सेलिंग प्राइस है एक्सटर्नल है इंटरनल। एक्सटर्नल का सेलिंग प्राइस 1,08,000 दिया है, इंटरनल का क्या दिया है? 1400
यूरोस, 1400 यूरोस था। वो ये साइन किसकी होती है? ये यूरोस की होती है, ये किसकी होती है पता नहीं, मैं भूल गया। तो 153 डिवाइडेड बाय 1700 इंटू 1400, ये अपन ने 126 निकाला। किसका? सेलिंग प्राइस। किसका? इंटरनल ट्रांसफर का। लेकिन वेरिएबल कॉस्ट अपन ने निकाल देंगे 80 और 74, इसकी वेरिएबल कॉस्ट कम है। लेकिन एक एडिशनल एडजस्टमेंट कॉस्ट अपन को करनी पड़ेगी इनकर, किसके लिए? इंटरनल सेल्स के लिए। क्यों? अपन को जेम इंडो से जेम मिलानो बनाना, तो उसके लिए 24,000 का एडिशनल कॉस्ट इंक्लूड करना पड़ेगा। लेकिन दोनों का कॉन्ट्रीब्यूशन सेम है, दोनों का कॉन्ट्रीब्यूशन सेम है। ठीक है, चलो आगे बताता हूँ। अब ध्यान दो, मेरी कैपेसिटी कितनी थी? 120। एक्सटर्नल डिमांड कितनी थी? 1 लाख यूनिट। तो टू द एक्सटेंट ऑफ 20,000 यूनिट, टू द एक्सटेंट ऑफ 20,000 यूनिट्स मेरा प्लांट आइडल था। प्लांट क्या था? आइडल था। अब मेरे पास डिमांड आई 50,000 इंटरनल की, और मेरे पास ऑलरेडी 1 लाख की एक्सटर्नल डिमांड तो थी। तो मेरे पास डिमांड कितने की हो गई? 150 की। लेकिन मेरी कैपेसिटी कितनी है? 120 की। मेरी कैपेसिटी है 120 की, मैं बना 100 रहा था, तो मेरी 20 की कैपेसिटी यूटिलाइज होना स्टार्ट होगी आइडल में से। अब ये यूटिलाइज होगी, तो इसका मतलब है कि टू द एक्सटेंट ऑफ दिस 20,000 यूनिट्स मेरा कंट्रीब्यूशन बढ़ेगा। करेक्ट। एक्सेस कंट्रीब्यूशन 20,000 इंटू 28,000 यूनिट्स, क्योंकि मैं 20,000 यूनिट्स पे 28,000 का एडिशनल कंट्रीब्यूशन कमाऊंगा, लेकिन उस पर 30% टैक्स भरूंगा। तो मैंने उसका 70% ले लिया, तो मेरा नेट बेनिफिट आया 3920। एक ट्विस्ट छोटा सा, इन दोनों का कंट्रीब्यूशन सेम है। अज्यूम करो कि इन दोनों का कंट्रीब्यूशन 28,000 सेम ना आता, किसी का एक का 26 आता और एक का 28 आता। एक का 26 आता, एक का 28 आता, तो क्या करते? भाई इस एक्सेस कंट्रीब्यूशन में सीधा उसका इम्पैक्ट आ जाता। ठीक है, ये जो एक्सेस कंट्रीब्यूशन है वो कम हो जाता। बात समझ में आई? तो इसका सेम है, इसलिए वो आपको कैलकुलेशन नहीं करना पड़ा। अगर अलग आता तो आपको फिर इसमें उसका इम्पैक्ट देना पड़ता। इसमें नहीं देना पड़ेगा क्योंकि सेम है, बट अगर आता तो इसमें इसका इम्पैक्ट आता। बात समझ में आई? तो अहमदाबाद डिवीजन को इतना बेनिफिट हो रहा है 3920, लेकिन अब मैं वहाँ पे बेच रहा हूँ। तो इटली की नेट कॉस्ट क्या है देखो, ध्यान दो। नेट इंक्रीज इन कॉस्ट लिख रहा हूँ, क्योंकि अपन ने यहाँ पे बेनिफिट मतलब इंक्रीज इन कंट्रीब्यूशन देखा, तो अपन यहाँ पे भी इंक्रीज इन कॉस्ट ही देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दो। The cost to Italy division for such transfer would be 1700 153, लेकिन इन द इटालियन मार्केट द लोकल परचेज प्राइस इज 144। मतलब जिसकी प्राइस 144 है वो मेरे से 153 में खरीद रहा है। मतलब अगर मैं इटली डिवीजन देखूं, इटली डिवीजन देखूं तो उसमें उसको लॉस हो रहा है कंट्रीब्यूशन का। क्यों? मेरे से महंगा खरीद रहा है वो। भले अहमदाबाद डिवीजन को बेनिफिट हो रहा है, बट इटली डिवीजन को लॉस हो रहा है। कितना देखते हैं भाई, मैंने 153 में खरीदा जो मुझे ऑलरेडी 144 में पड़ रहा है। कितने? 50,000 यूनिट्स, 50,000 यूनिट। अच्छा, जितनी मुझे कॉस्ट ज़्यादा भुगतनी पड़ी, जितनी मुझे कॉस्ट ज़्यादा भुगतनी पड़ी उतना मुझे टैक्स में बेनिफिट मिलेगा। उतना मुझे टैक्स में बेनिफिट मिलेगा कितना? 40%। क्यों? उसकी टैक्स रेट कितनी है? 40%। मुझे 40% बेनिफिट मिलेगा, तो मैंने 60% ही कॉस्ट को कंसिडर किया। तो 9,000 रुपीज़ में एडिशनल उसको पे कर रहा हूँ। किसको? अहमदाबाद डिवीजन को। कितने यूनिट्स के लिए? 50,000 यूनिट्स के लिए। और क्या मुझे 40% टैक्स बेनिफिट मिल गया, तो मुझे 60% ही कॉस्ट इनकर करनी पड़ी। तो मेरा जो एक्सेस कॉस्ट आया वो कितना है? 27 लाख, सॉरी 27 करोड़ रुपए। 27 करोड़ रुपए। अच्छा, बेनिफिट कितना था अहमदाबाद डिवीजन को? कितना बेनिफिट? अहमदाबाद डिवीजन इटली डिवीजन दोनों मेरे ही बच्चे हैं। अहमदाबाद डिवीजन इटली डिवीजन दोनों मेरे ही बच्चे हैं। एक बच्चे को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हुआ, एक बच्चे को इतना लॉस हो गया। तो नेट बेनिफिट कितना हुआ? 3920 माइनस 27, 1220। किसको? डायमंड लिमिटेड को। डायमंड लिमिटेड को नेट बेनिफिट कितना हुआ? 1220 का। तो क्या इस डील से जाना चाहिए? मतलब क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या है उसके हिसाब से आंसर लिख के आ जाना। क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या है? क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या है?
वुड डायमंड लिमिटेड बेनिफिट? यस। कैलकुलेशन करके नीचे यस लेके आ जाना हमेशा। ये आपको बाकी फैकल्टीज भी बताते होंगे कि आंसर हमेशा क्वेश्चन की लैंग्वेज में देना चाहिए। बात समझ में आई? तो ये आपकी आरटीपी की केस स्टडी 2 थी। वन अपन ऑलरेडी डिस्कस कर लिए, ठीक है। बस हो गया, बहुत हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट केस स्टडी में, तब तक के लिए